फ्रेंड्स, इंक्रीजिंगली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक नए फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन से रिवॉर्ड कर रही हैं. दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, और इन शॉर्ट फॉर्म द नेम इज कॉल्ड RSUs. So what we will learn in this video is कि what is an RSU, how are they awarded, and उनसे क्या wealth creation strategies हो सकती हैं. उनके एक यूनिक टैक्स एंगल्स रहते हैं, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट सो दैट यू कैन टेक केयर इन योर पर्सनल फाइनेंस, एंड व्हाट कुड बी इट्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. सो विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डेप्थ इन दिस वीडियो. Before we do that, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA, where we are one-stop shop for all financial need of people. We regularly on a weekly basis release personal finance content. You may want to subscribe to our channel to get your regular automatic update. Let's crack on. So let's get into the basics of RSU. RSU क्या होता है? अगर आप इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. RSUs are more like shares but restricted in nature. They are a form of compensation. आपको सैलरी ना देकर आपका एम्प्लॉयर आपको उस कंपनी के शेयर्स का राइट देता है. That if you stick along, we will give you ownership of the company. Why? Shares are a part ownership of the company. But the word is restricted. तो उसका मतलब क्या है? It's actually a promise by your company that we will give you specific number of shares after you meet certain conditions, right? So how does that work? You do not need to pay anything extra on top of it, but they are actually core financial benefit. Hence, जब भी आपको एक RSU कंपनी का मिलता है तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है. So indirectly, instead of paying money to the company to get ownership of the shares in the company, you end up paying tax as a benefit कि जितने का शेयर्स आपको दिए उतने का वैल्यू का आप टैक्स आप पे करते हैं. Now, why would a company want to give RSUs for free? I mean, कुछ तो होना चाहिए ना कंपनी के लिए. You take it this way. Why do they pay salary to you? Obviously, this is because they expect some kind of efforts or contribution coming from employees. So it's one more form of a compensation for the contribution. Interestingly, this is a more deferred form of a contribution, which means that they will say, I'll give you this much number of stocks, but they will be given to you after 3 years. एंड मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देती जाऊंगी, लेकिन वो हर 3 साल के बाद मिलता जाएगा. एग्जाम्पल, जनरली व्हाट हैव सीन इज 2 से 4 साल के बीच में डिलीवर एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं. नाउ कंपनीज के पर्सपेक्टिव से ये डिफर्ड कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि नाउ द एम्प्लॉयज़ विल स्टिक अराउंड फॉर दैट मच लॉन्ग, बिकॉज दे विल सी दैट जो स्टॉक्स कंपनी उसको देना चाह रही है वो उनको थोड़े टाइम बाद मिलेगा. सो दे विल हैव टू स्टिक इन द कंपनी फॉर दैट लॉन्ग टू गेट ओनरशिप ऑफ दो स्टॉक्स. नाउ एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से क्या है, उनको एक दे मे फील दैट दे आर पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी. दे माइट बी मोर मोटिवेटेड कि if the company does well, based upon their contribution, the stock prices will go up, which means the stocks which they have from the company, उससे उनकी net worth बढ़ जाएगी, right? So then how does RSUs work? So RSUs के cases में एक बड़ा critical term होता है which is called vesting. So what does this vesting mean? So vesting effectively means that it's more like a lock-in. राइट, वेस्टिंग मीन्स कि आपको आज जितने शेयर्स मिले वो आपका राइट फ्यूचर में बनेंगे. सो करेंटली दे आर अनवेस्टेड. The moment they become your right now, they become vested. So example, if the company says to you that I will give you 150 shares, provided you complete 3 years, and उसके बाद हर साल में 1/3 देते जाएंगे. So for example, year 0 पे आपको कंपनी ने बोला मैं आपको 300 शेयर्स दे रही हूँ, ठीक है. year 3 खत्म होने के बाद आपको 1/3 which means 100 शेयर्स आपको मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, which means it is now vested. 100s have been vested, 200 are now unvested so far. फिर अनदर नेक्स्ट 1 साल आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक और 100 मिल जाएगा. 3rd ईयर आप कंप्लीट करेंगे फिर एक और 100 मिल जाएगा. एवरी टाइम द शेयर्स गेट्स क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, दे बिकम वेस्टेड एंड नाउ दे आर योर मॉनेटरी राइट्स. नाउ यू कैन सेल देम, यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड्स एंड अदर इनकम्स फ्रॉम दो स्टॉक्स. बट टिल सच टाइम दे हैव नॉट बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड आर अंडर लॉक इन, दे आर अनवेस्टेड. ठीक है. नाउ वेस्टिंग कैन हैपन इन मल्टीपल वेज. द 2 कॉमन वंस विच आई हैव सीन इन द इंडस्ट्री इज, एक तो हो गया ग्रेडेड, कि आपने है ना रोलिंग बेसिस पे, जैसे जो मैं भी एग्जांपल दे रहा था 3 साल का, 3 साल में मिल रहे हैं, 2 साल में दे सकते हैं, 5 साल में दे सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट कि इस तरीके से वेस्ट होना है. अनदर विच इज कॉल्ड इज क्लिफ वेस्टिंग. एक साथ वो कहेंगे हमने आज आपको शेयर दे दिए इतने, आपका राइट बन गया, आज से 5 साल बाद ये सारे शेयर्स आपके एक साथ. दैट्स क्लिफ वेस्टिंग. ठीक है. नाउ कंपनीज माइट गिव RSUs इन मल्टीपल वेज. कोई नया इंसान को ज्वाइन कराया,
सीनियर पोजीशन पे उनसे कहा विल गिव यू दिस मेनी शेयर्स आफ्टर यू कंप्लीट दिस मेनी पीरियड। सो न्यू हायर्स के टाइम पे एनुअली कह सकते हैं, हर साल वो कहेंगे आपको हम हर साल 300 शेयर्स आपके कोटा में डाल देंगे जो आपको 3-3 साल कंप्लीट होने में मिलते जाएंगे। सो एनुअल मिल सकता है, बोनसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस वे। सो देयर आर मेनी वेज, सो इट देयर इज नो वन सोल्यूशंस व्हिच वर्क्स ऑल द टाइम, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, वंस अ शेयर बिकम्स वेस्टेड they are as good as your bank, like any other share which you own, and you now can start enjoying the dividends coming from there. अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है टैक्सेशन का। Why? Most of the companies जो अपने को ये RSUs देती हैं, they are mostly listed outside the country. So they are all listed on a foreign exchange, maybe NASDAQ for example. तो when a person is working for example in India and उसकी company is a overseas MNC, तो उसको जब शेयर्स मिलते हैं तो उसके 2 टैक्स लाइबिलिटीज बन जाते हैं, एक इंडिया में और एक रिस्पेक्टिव कंट्री में। सो हाउ डज दिस वर्क? सो पहला, इंडिया के अंदर जितने शेयर्स आपको मिले वेस्टिंग पे, सो इन प्रीवियस एग्जांपल 300 शेयर्स से, लेट्स अज्यूम दैट द 300 शेयर्स में से 100 आपको वेस्ट हुए एंड एक शेयर की वैल्यू इज रफली लेट्स से $50। तो 50 इंटू 100, $5,000 इज योर एक्चुअली योर इनकम दिस ईयर, इंटू INR से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इज योर इनकम फॉर दिस ईयर, ठीक है। नाउ if you are let's in the 30% tax bracket, so that income into 30% is what tax you need to pay to the government of India. Overseas में जब वेस्ट होता है तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर सिमिलर टैक्स लॉज। दे माइट से कि ओवरसीज के लोगों के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक परसेंटेज विच विल बी डिडक्टेड। नाउ हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दिस हैसल एंड हाउ डू यू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग, पहले तो लेट्स से यूएस में टैक्स हो गया, फिर इंडिया में टैक्स हो गया, तो पता चला खाया भी कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आने वाला की कहावत हो गई। तो इस सिचुएशन में द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स कम इनटू द प्ले, वेयर बाय अगर एक कंट्री में टैक्स लग चुका है, दोबारा दूसरी कंट्री उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज हैंडल्ड बाय द HRs ऑफ द कंपनी। सो व्हाट हैपेंस इज, जो मैं आपको अगेन विल टेक द सेम एग्जांपल, जब वो 100 शेयर्स वेस्ट हुए, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, लेट्स से आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आपका लेट्स से रिक्वायरमेंट इज टू पे रफली 30% टैक्स एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो कंपनी क्या करती हैं, आपको पूरा 100 आपकी लाइफ को जो क्रेडिट हो रहा है उसमें से 30% शेयर्स को हाल की हाल वहीं पर उसको रिकवर कर लेती हैं, मतलब आपको 70 शेयर्स ही देंगी, 30 को इट्स अज्यूम दैट दिस इज सोल्ड ऑफ एंड दैट इज व्हाट द टैक्स कॉम्पोनेंट जो 30% था वो सेट ऑफ हो गया। सो देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडिशनल टैक्स out of that outcome. What you will notice though, that जो shares आपके credit हुए हैं account में, you will start seeing that appearing in your Form 16 as perquisites. This now brings into the next step, the complications while filing the tax returns. Now, people mostly ignore and that's where they may attract trouble from the taxman. What do you need to do from a tax perspective? Let's look into the next section.